सभी को सुप्रभात। आज अप्रैल महीना के 7 तारीख है। हम यहाँ पे ईटी मार्केट पे खड़े हैं जो मिस रिबिका बासर जिन्होंने ओपन क्वीन 2025 पासीघाट में आयोजित किए थे, उसमें फर्स्ट रनर अप घोषित किए थे। इसके लिए यहाँ सभी के सभी निवासी जितने उनके शुभचिंतक है वो यहाँ आके उन्हें स्वागत के लिए अभी तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे अभी सुनने में आया कि बहुत लोग रास्ते में अभी भी आ रहे हैं और यहाँ काफ़ी लोग आ चुके हैं। सिलो डेट 7 अप्रैल 2024 लो मनो मिस रिबिका बासर फर्स्ट रनर अप मिस ओपन क्वीन contest 2025 at Pasighat me basar peluk tak nam laga be welcome lah hegi soi dolu acap gadde nyame gadde ke mereka ani gadde abir gadde me welcome lah hilo dt market hegi ambe me bici toraduna oke me relative aksi moi mostakshin adu akin akne ji anjing ko bolo bam am Roska lamuni torala rebeduna आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज़। मैं लिमी बसर। हमारे व्यूवर्स को बता दूं, गालो कम्युनिटी के एक मोपिन फेस्टिवल जो गालो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी दिन को पासीघाट पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था मिस मोपिन का। तो उसमें से फर्स्ट रनर अप निकला मिस रिबिका बासर, जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि वहाँ पे कितना पार्टिसिपेट आया है, उनमें से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, उनके बारे में जानने का विस्तार से मिस रिबिका बासर के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। So thank you very much. Talking about the journey, it was great and I feel very honored to be on that journey. And we had a top 17 contestants and we had a traditional round, and after that we had an intro round, and again we had a casual round, and after that an evening round. After that top 10 selection has been done and I made it to top 10, and again questioning round. After that I made to top 5, and as a first runner up my name has been called. So talking about the experience on that journey, was lots of learning experience. I get to learn a lot, and experience and exposure we have been getting there, it was great. And all the contestants, they were equally competitive and hardworking, and everyone were focused and determined, and yeah, that's all. आपको ये 50,000 का अमाउंट आया है, फर्स्ट रनर का प्राइज मिला है, उसको आप किस प्रकार का यूटिलाइज करेगा? So about the winning cash amount, so I will going for audition for Miss Universe Arunachal or maybe in Miss Arunachal. So I'll definitely use in for my further pageantry platform, because pageantry is really required expenses, because we need to have a proper gown, and during grooming sessions also we have to wear a good outfit. So yeah, I think I'll definitely utilize on that. कॉन्टेस्ट वगैरह होता है वो नॉर्मली जितना तक आता है टाउन से कोई आता है, लेकिन आपने बस्ती से निकल कर आया है। Yeah. So I was a beauty pageant aspirant since very long. I manifested myself to be on a beauty pageant, and but I never get proper time because of my studies. I was in Guwahati, I was studying there, so I never get the time to do that. And right after my internship has over, I came back home, so I got to know Pasighat there will be Miss Beauty Queen competition, so I gave audition for that, and
talking about me coming from a small village, that doesn't bother me at all, because I think if you have determined and if you are focused enough, you can achieve anything, and your hard work, your determines really matters. So yeah, that's the thing I would say. और मैं चाहता हूँ आप अपने बस्ती का नाम को भी बता दिए, ये कहाँ पर पड़ता है और यहाँ के जो आपका फैमिली मेंबर लोग ये से फर्स्ट रनर मिला है तो कैसा लगा है, Okay. उसके बारे में कुछ बताइए। So I am from the very beautiful village, Soi village, La Parada district, and my family, all my village members, they were very supportive and encourage. They support me a lot, and that's all. आने वाला यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहता है? So to younger youth, I would say, if you are interested in beauty pageant, you really need to know about the current issues, or maybe we need to involve in society, because beauty pageant is not only about how external beauty, it also about how you carry yourself and how you know about the society and what are the views of yours that you want to contribute in the society. So that's all is a thing. So I would say that if you are planning to be on a beauty pageant, you should know about that. And also education is very important. Like before doing anything, we need to educate ourselves enough. And yeah, if you are interested in, definitely we can go, because it's also a profession. We can take it as a career. So yeah, that's all. हमारे साथ मौजूद है मिस रिविका बसर के दादाजी आतो, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उनका पोती जो फर्स्ट रनर अप मिला है तो उनको ये सुनकर देखकर कैसा लगा, इनके द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। IPN न्यूज़, धन्यवाद कि आपने हमारे बीच आया और हमें ये सवाल किया, हमें बहुत अच्छा लगा। जिस तरह आप आके हमें प्रश्न किया, ये मेरे बेटी जो बचपन से उनका पढ़ाई में, रहन सहन में अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, अपना निजी लाइफ में, पढ़ाई में भी ठीक था और अपने निजी लाइफ में अनुशासन डिसिप्लिन के साथ में था। और जहाँ कहीं भी थोड़ा कुछ कार्यक्रम होता था, वैसे कार्यक्रम में वो कहीं ना कहीं भाग लेता था, अपना पार्टिसिपेशन दिखाता था। तो उस ज़माने से मेरे अंदर एक उम्मीद जगा है कि मेरे बेटी के अंदर में एक वो सक्षम है, सी हैज़ पोटेंशियलिटी, उसका पास में एक हिडन टैलेंट है, पोटेंशियलिटी है। उस सपने के साथ, उस उम्मीद के साथ हम जीता रहा। हाँ, ये तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में या नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में नहीं है, फिर भी अपने एक मोपिन के समारोह में ये जो टाइटल जीत के आया है, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए ये गर्व की बात है। हमें गर्व महसूस है कि मेरे बेटी जो ये फर्स्ट रनर अप जीत के आया, ये तो उनका फर्स्ट कॉन्टेस्ट था। ये पहली बार जब कदम रखा तो पहली पार्टिसिपेशन में जो ये फर्स्ट रनर अप लेके आया, हमें संतुष्ट है, बहुत खुश है और ऊपर वाले को भी शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे बेटी को इस काबिल बनाया। और हमारा कामना ये भी है, ये तो पढ़ाई BSc नर्सिंग किया है गुवाहाटी में, उसके बाद मुंबई में अंबानी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करके आई है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेक। तो उसके बाद ये कुछ महीना हुआ है घर में बेटा हुआ, तो इस छोटा सा इस वेकेशन या इस छुट्टी में ये अपने आप को इस कदर इन्वॉल्व किया कि टाइम को अच्छा यूटिलाइज किया। तो समाज में और अपने गांव के लिए कुछ भी बोलिए, एक टाइटल लेके आया है।
हम ये मानता है मेरे सारे गांव वाले भी गर्व महसूस कर रहे होंगे हमारे साथ, और अच्छा पाया होगा कि मेरे बेटी जो ये टाइटल जीत के आया है। तो बहुत बड़े ही ना ही सही, लेकिन कुछ भी हो, एक टाइटल जो जीत के आया, एक सफलता का रंग जो हमारे परिवार में लेके आया है ना, हमें बहुत खुश है। और उनके अनुशासन के ऊपर, उनके डिसिप्लिन के ऊपर हम बहुत गर्व करते हैं। एंड वी बिलीव एंड वी होप इवन इन द डेज टू बी कम, वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अच्छा काम जैसे भी करके हमें दिखाएंगे, ये हम उम्मीद रखते हैं। और सर आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि आने वाला यूथ के लिए भी आप भी कुछ अच्छा मैसेज दे दीजिए। आने वाला पीढ़ी को या इस युवा जनरेशन को मैं ये कहना चाहूँगा, उतना बड़ा सफलता नहीं, फिर भी मेरे बेटी जो मैंने पहले भी कहा है थोड़ा डिसिप्लिन के साथ में था और पढ़ाई में ध्यान देता था। पढ़ाई में ध्यान दे के आप किस क्षेत्र में, किस एरिया में आप अपने आप को, अपना टैलेंट को आप दिखा सकता है, उस एरिया को भी चुनना है यूथ। कोई फुटबॉल में अच्छा है, कोई ब्यूटी पेजेंट में अच्छा है, कोई वगैरह वगैरह, बहुत देयर इज सो मेनी एरियाज वेयर यूथ कैन गेट इन्वॉल्व एंड डिस्कवर देयर पोटेंशियलिटी ना, अपना पोटेंशियलिटी को डिस्कवर कर सकता है। तो आज के न्यू जनरेशन को हम ये इनकरेज करना चाहूँगा कि आप ऐसे मत बीतिए, कोई किताब पढ़िए, कोई अच्छा सोच, अच्छा इमेजिनेशन रखिए, तो अच्छा जगह में आप अपना एनर्जी को डालिए, तब तो आपका पोटेंशियलिटी को दिखाएगा, तो समाज अच्छा होगा। तो फिर दोहराना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा सफलता नहीं है, फिर भी एक अच्छा टाइटल जो लेके आया है। इसीलिए हम आज के युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूँगा, अपना नॉलेज को, अपना पोटेंशियलिटी को, अपना टैलेंट को छुपा के मत रखिए, आगे दिखाइए और अच्छा जगह में आप लेके आइए। ये हम मैसेज देना चाहता हूँ।